Thank you very much, ma'am, for sharing your knowledge and for wonderful suggestions. May I now request Dr. Divya Srivastava, ma'am, Head of the Department of Physiology, to kindly felicitate Dr. Madhu Nayak. A huge round of applause. We are also obliged with the presence of another guest, Senior Advocate Pramila Sharma. She is a social activist and running an NGO in the name of Ma Pitambara Legal Aid Clinic and has worked at grassroots level for child abuse in association with police, juvenile homes and various schools. I would like to call Dr. Richa Gupta, Head of the Department of Forensic Medicine, to kindly welcome our Senior Advocate Pramila Sharma. Please raise your hands together. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite Dr. Vishal Sinha, sir, Professor, Head of the Department of Psychiatry, for his topic, Mental Health Approach Towards Child Abuse Victim. A huge round of applause. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Richa, for giving me an opportunity to be here. All exhausted faces. The problem with me is that every time forensics department is not having a good liaison with psychiatry department. They always put me at the last. So I have to wait such a long, and apart from that बाकी के स्पीकर सब कहे जाते, मेरे पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है. That's the biggest problem. अब now again मैं इतना सारा लेकर आया था, लोगों ने सब बोल दिया. एडवोकेट को बुला लिया, जज को बुला लिया, फोरेंसिक पीडियाट्रिक सबको बुला लिया. हाँ, अब मैं क्या बोलूं ये बताइए. So I was told that this is getting aired live. So बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है ना. बहुत सारे लोग पता नहीं कौन सी क्लिपिंग डाल दें, मेरे ऊपर ही लग जाए अगले दिन. Where it gets escaped. I got it. Fine. Thank you. Okay. So don't worry kids. I don't have much slides. देखो नीचे 10 लिखी हुई हैं. सिर्फ 10 हैं. है कि नहीं? जल्दी छुट्टी मिलेगी. Don't worry. And I also have to go for lunch यार. Not only you. I have to go. इसमें दो मेरे नाम की हैं, 2 thank you की हैं. So only 6. Don't worry. So I deserve a huge round of applause. Please. Thank you. इतने सारे स्पीकरों के बाद कोई तो आया मन की बात करने वाला, है ना. इतनी देर से बताए चले जा रहे हैं यार, बताए चले जा रहे हैं. पॉस को ये करो वो करो. हम पता नहीं क्या सोच के आए थे. MBBS फर्स्ट ईयर, महीना भर हुआ नहीं है ज्वाइन करे हुए, और 2 घंटे से पढ़ाए चले आ रहे हैं. ऊपर से जा रहा है सब. कुछ समझ में नहीं आ रहा. आ रहा है? आया थोड़ा बहुत. हाँ, सुबह से बात हर चीज शुरू हो रही है कहां से? सेक्सुअल एक्ट से. क्योंकि अभी यूज तो सीखा नहीं हमने. ऑफेंस की बात पहले सिखा दी गई. That is because every car has a brake, है ना. And before you learn to drive, सबसे पहले क्या बताया जाता है? ये भाई साहब ये ब्रेक है. ब्रेक आपको किसी चीज से रोकने के लिए नहीं है. ब्रेक आपको इसलिए बताया जाता है कि आप उस गाड़ी को किस स्पीड से चला सकते हैं. जब तक आपको ब्रेक पता है कि यहाँ है, तो आप अपनी स्पीड निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ इस स्पीड से चलाना है.
अगर आपको ब्रेक नहीं पता, जब आप गाड़ी पहली पहली चलाना सीखते हैं ना, कोई भी स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल, तो आप थोड़ी सी स्पीड देते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं कि भाई साहब कितनी देर में रुकेगी, ये अंदाज हो जाए। तो ये अंदाज है कि ये नहीं करना है। दिस इज टू सेंसिटाइज यू पीपल, यू आर द पीपल, यू आर आवर फ्यूचर। ठीक है ना। अब तो हम लोग यहाँ खड़े होकर बोलते हैं आप लोग जाएंगे 5 years down the line when you are finished up your medical graduate course, few people you will be working in as medical officers, as doctors, as teachers, as scientists, as police। बहुत सारे 2-4 IAS IPS में चले जाएं, कोई पता नहीं है। फिर उसके बाद पता चला पॉस्को मेरे को पढ़ाता था, फर्स्ट ईयर में कुछ तो पढ़ाया था। So this is just to sensitize you people, as every speaker has shared that people are not sensitized about, we don't know, we have lack of resources। हमारे पास स्पेशल डेडिकेटेड थाने नहीं है, असिस्टेंट लोग नहीं है, अलग से कोर्ट नहीं चल रही हैं, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। ठीक है कि नहीं। तो हमारा डिस्कशन सारा नई 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 पे चलता रहता है कि अब उस देश का कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, सत्यानाश हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा, है ना। एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। सो वी आर नॉट हियर कि क्या नहीं है, जो कुछ है थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्ट है आपके पास, हमारे पास क्या नहीं है, जानकारी नहीं है। ठीक है कि नहीं। बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की गई, एक्ट में कितनी सज़ा मिलती है, तो थोड़ा बहुत डर मन में लाजमी है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, पॉस्को एक्ट की सबसे अच्छी चीज़ खासियत क्या है कि बिकॉज ऑल द वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स, दे आर द सेंटर ऑफ प्रोटेक्शन, हमें उनको बचाना है। तो वी हैव टेकन ऑल द लाइबिलिटी फ्रॉम दोज किड्स एंड इट हैज बीन शॉवर्ड ओवर अस। एवरीबडी अबाउट द अराउंड द किड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर doing the things that are laid it down in the act। ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्टर होना जरूरी है, इवन द टीचर, इवन रिलेटिव, इवन पड़ोसी, जज, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले का काम है। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा आता है, आपको लगता है कि उसके संग कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा काम है, हमें इंटीमेट करना। आपको कोई ऐसा नहीं करना होता है कि आप जाइए थाने में और पकड़ लो उसको, उसने ऐसा करा है। इवन डॉक्टर्स ऐसा कुछ नहीं है, हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना कि इवन यू कैन इन्फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ अ सस्पिशन। आपने एग्जामिनेशन भी नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, आप डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन अगर आपको सिर्फ सस्पिशन है तो पॉस्को एक्ट गिव्स यू दैट लिबर्टी, इवन ऑन सस्पेशन यू कैन राइट कि आई सस्पेक्ट कि अस sexual offense has been done against a kid, and you are not liable for any kind of offenses, you are not liable for any kind of punishments or any sort of that thing। So that's the beauty of the act and it's a double edged sword। ये मुश्किल भी है हमारे लिए कि भाई साहब कर कोई रहा है, भुगत कोई रहा है, फंस कौन रहा है। हम कोर्ट किसको पकड़ लेता है, डॉक्टर साहब आपको पता चली, आपने क्यों नहीं रिपोर्ट करा, क्योंकि भाई घर वाले तो मान नहीं रहे थे, कैसे करें, घर वालों ने मना कर दिया, घर वालों ने मना कर दिया डॉक्टर साहब को कि हमें रिपोर्ट नहीं करनी है, डॉक्टर साहब आप तो इलाज करो। अब डॉक्टर साहब ने पढ़ रखा है, इतने साल सेमिनार अटेंड करे, पॉस्को के सब कर लिया, अब डॉक्टर साहब सोच रहे हैं नहीं करे रिपोर्ट। 6 महीने बाद मन बदल गया, रिपोर्ट कर दी, केस हो गया, फंस कौन गया, डॉक्टर साहब की बात से। जब आपके पास आया तो आपने क्यों नहीं, क्योंकि आपने मान ली उसकी बात। तो डॉक्टर मधु ने जैसे कहा, अगर ऐसा है तो लिखिए, कागज पे उतारिए उसको कि ऐसा कहा गया है। ठीक है, FIR नहीं भी होती है, और अगर मरीज मेडिको लीगल, उसके घर वाले मेडिको लीगल के लिए तैयार हैं तो आपको सैंपल कलेक्शन भी करना है विदाउट FIR। हो सकता है 2 महीने बाद वो रिपोर्ट कर दे, 1 महीने बाद रिपोर्ट कर दे, 10 दिन बाद रिपोर्ट कर दे। फाइन। सो दीज आर द बेसिक व्हाट हैज बीन ब्रश्ड अबाउट। आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज माय जॉब। फाइन। About psychiatry, psychological aspects. So we are talking about trauma, sexual offenses। Trauma is one aspect, you can have फिजिकल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा। इमोशनल अत्याचार कितना सारा आजकल होता रहता है, सारे माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं ना, इमोशनली ब्लैकमेल करते रहते हैं। हो वी आर लिविंग इन इंडिया, सो वी हैव सर्टेन राइट्स। सो बेसिकली ट्रॉमा कैन ऑन ऑफ बी ऑल शेप, बट वी आर स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टिंग टू आवरसेल्फ टू सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट डन अगेंस्ट चिल्ड्रन। सो वैसे कई बार बोला जा चुका है जेंडर न्यूट्रल है, जेंडर न्यूट्रल है, तो पुरुषों को उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर उनके खिलाफ भी कोई अगर ऐसा कृत्य किया गया है तो दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट, एंड इट इज वेरी कॉमन नाउ डेज।
So we should be aware it's not that only females are the one who are abused sexually. Males are also there, though in smaller number, but it is more common in rural areas as compared to the urban areas, but it is prevalent, it is present into our society. A very small chunk of population who are sexually abused do lodge their complaints directly because of n number of cases. The majority of the people who land up with psychiatrists, with psychological cares and mass complaints, that give you the suspicion that the patient has undergone some kind of trauma, specifically sexual trauma or any other trauma by the hand of a perpetrator. That can be a known one or unknown one or anyone else. False cases are also there, but the index of suspicion should always be high for everyone. Fine. Theory won't be going. We have some certain cases. I will share you with one case. One boy came to my OPD around about 15 years, 15 साल का, थोड़ा सा intellectual disability, mild intellectual disability, is not able to understand. He used to come to our OPD. एक बार आया, सिर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है और बहुत चिड़चिड़ा हो गया है. ठीक है, हम भी रशी ओपीडी में, हाँ भाई बताओ क्या हो गया, सिर में दर्द, अच्छा सिर की दवाई, ये दवाई, पेट दवाई, फाइन, ठीक है, पेट वाले को दिखा लो. दिखा लिया. 5 दिन बाद फिर आ गया, कोई आराम ही नहीं आ रहा है. फिर दवाई चेंज करी गई. प्रॉब्लम्स, पहले पेट दर्द था, बदन में दर्द था, ये था वो था. 5 दिन बाद कंप्लेंट साधारण से बदलने लगी कि अब ये स्कूल नहीं जाता है, ये खाना नहीं खा रहा है, गुस्सा हो जाता है, कमरे में बंद हो जाता है. बिकॉज ही वॉज इंटेलेक्चुअली केपेबल उतना नहीं था, चीजों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था. आफ्टर 3 विजिट्स इट टुक अस दैट मच टाइम. 3 विजिट के बाद समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है. हमने मरीज को बैठाया, उसके माता पिता को बाहर बैठाला, कमरे का दरवाजा बंद किया. देन वी कि बताओ अब क्या बात है, कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है. आफ्टर 20 minutes ऑफ जस्ट आस्किंग, टेल अस, जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल नॉनसेंस स्टफ. ठीक है ना. इफ यू people usually, it's not something bad has happened to you, is it that easy to come up कि हाँ मेरे संग कुछ गलत हो गया है. It requires a lot of courage, lot of patience, lot of, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये समझ में, यहाँ दिमाग में समझ में आना चाहिए कि सामने वाले को इससे कोई फर्क पड़ता है, वो मेरी बात समझता है कि नहीं समझता है. अगर आपको लगता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता या इसको समझ नहीं आएगा तो आप कभी नहीं बताएंगे. एंड दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज वी हैव अ बैरियर विद अवर पेरेंट्स. किसी भी प्रकार का बैरियर हो सकता है. हमें लगता है कि ये नहीं समझेंगे, या ये मुझे ब्लेम करेंगे, या कुछ करने वाले तो है नहीं. इफ दिस काइंड ऑफ नोशंस, बॉडी लैंग्वेज यू आर पासिंग ऑन टू द एक्यूज्ड, तो वो कभी भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आती है. तो सबसे पहले जरूरी है, ऑलवेज व्हेन वी आर इंटरव्यूइंग और वी आर सस्पेक्टिंग any kind of assault, physical, emotional, psychological, or any kind of assault, we usually start with normal things. Normal things like, अगर आपसे कोई बात करना चाहे और आपसे पूछे हाँ भाई क्या दिक्कत है, दिक्कत तो सबको बहुत सारी है, मुझे कौन बताने आ रहा है, कोई नहीं बताने वाला. So what we start with, hi, hello, how are you, why you have come here, who is in your family, कौन सा टीवी चैनल देखते हो, कौन से गोलगप्पे टिक्की खाते हो, वो तुम्हें क्या पसंद है, चॉकलेट है घर में, भाई है, बहन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और तुम्हारी पसंदीदा हीरोइन कौन सी है, पसंदीदा हीरो कौन सा. एवरीबडी लाइक्स टू टॉक अबाउट दिस. दीज आर न्यूट्रल टॉपिक्स, है ना, नॉन जजमेंटल. खराब हीरोइन भी बता दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता कौन सी हमारी शादी होने वाली है उससे, है कि नहीं. कुछ भी बता दो, सलमान खान की जगह कुछ भी बता दो, क्या फर्क पड़ता है. सो यू टॉक अबाउट, है ना. तो कि छोटा भीम पसंद है हमको, कि पोगो पसंद है, कि शिनचैन पसंद है. नो बडी इज गोइंग टू जज यू कि आपको भीम क्यों पसंद है और शिनचैन क्यों पसंद है, एक्सेप्ट अ साइकियाट्रिस्ट. सो we talk about general topics, and when you understand them, you make them involved. We have dolls with us. Dr. Madhu ने भी बताया कि we have charts, forensic charts. In psychiatry OPT we keep dolls with us, male dolls, female dolls for small kids, and we usually give them those dolls, and they imitate and play. That we call as a made act play. So what when usually kids are left alone, आपने नहीं खेला कभी घर घर, डॉक्टर, इंजीनियर कोई नहीं खेलता, डॉक्टर तो सब खेलते हैं. इंजीनियर किसी ने खेला, इंजीनियर कोई नहीं खेला है ना. हाँ, घर घर डॉक्टर सब खेलते हैं. हाँ, सैलरीज आर लेस, इंजीनियर की सैलरी बहुत ज्यादा है. हाँ, तो दैट इज अ रोल प्ले, है ना, कि मैं डॉक्टर
तू नर्स बन जा और तू ये बन जा, और हमारे घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, तू माना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तेरे इंजेक्शन लगाऊंगी, तुझे गोली दूंगी। खेलते नहीं खेलते? what you have dreamt in your life, what you have your in unconscious mind ना, you act it. तो अगर आपके संग कुछ बुरा हुआ है ना, so what you try to act it. ये बहुत गंदी लड़की है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, दो झापड़ मार दिए डॉल को, मुंडी तोड़ दी, बाल खींच लिए, पैर तोड़ दिए, ये बेकार है, मैं इसके संग नहीं खेलूंगी। क्यों नहीं खेलूंगी? ये लड़का, ये गुड्डा अच्छा नहीं है, ये मेल बॉय डॉल अच्छी नहीं है। सो यू हैव टू सिट एंड ऑब्जर्व. सो these are the subtle things which you have to carry on. It's a time consuming process. ठीक है ना? अब पॉस्को कह रखा है 24 घंटे के अंदर कुछ करो, वो हमारी मजबूरी कैसे करें? 24 घंटे में तो बड़ा आदमी नहीं बताता कि मुझे क्या समस्या है, छोटा बच्चा कैसे बता देगा? लेकिन so that's the problem with this, but you don't have to leave that. So that is how you have to make the patient comfortable, the client comfortable with you, so that she or he have patience. आपके अंदर भरोसा रखता है कि हाँ ये आदमी है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अगर आप वो भरोसा नहीं ट्रांसमिट कर सकते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। वो काम हमारा है, हमारा पेशा ऐसा है ना? जैसा भी डॉक्टर मधु ने क्या हम वार्ड में जाते हैं, केस हिस्ट्री लेते हैं। अभी तो आप लोगों की उतनी औकात हुई नहीं है, होगी जब देखेंगे। तो जब आप पहुंचेंगे केस हिस्ट्री ज्यादातर यही होता है कि हाँ भाई बता, पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर करो। और सो इट इज अवर ड्यूटी। जब आप सीखेंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो करने से पहले हम क्या करने जा रहे हैं वो समझाते हैं, और कैसे करेंगे और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं ये सब बताया जाता है। कि मैं आपका एग्जामिनेशन करूंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और इस एग्जामिनेशन से आपके इलाज का कोई लेना देना नहीं है। एग्जामिनेशन में चाहे कुछ भी आए, इलाज आपका फिर भी होगा। ये एग्जामिनेशन टोटली कॉन्फिडेंशियल है। यूजुअली क्या होता है, जब एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास आता है तो क्या होता है, पुलिस वालों को केस निपटाना है, एक हाथ में तो इधर रस्सी से वो बंध रहा होता है जिसने किया होता है, इधर लड़का चल रहा, चल दोनों एक ही कमरे में एग्जामिनेशन के लिए। एक ही मेडिकल ऑफिसर है, बच्चा बैठा हुआ है सामने 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल का, और इधर मेडिकल एग्जामिनेशन कन्वेक्ट का चल रहा है। कैन यू इमेजिन कि सामने जिसने आपके संग कुछ अच्छा नहीं किया है वो आपके सामने बैठा हुआ है, तो आपकी हिम्मत होगी कि डॉक्टर को कुछ बताने की? अगर आधी कहानी तो उसकी सुन के आया है, उसकी मानेगा कि मेरी मानेगा? स्मॉल थिंग्स हैव टू बी डन इन अ डिफरेंट वे. Small things have to be done, and that has to come. That's kind of unless and until we understand the plight of the child who has suffered, it's very difficult to do that. And what really happens when you suffer from any damage? जब आपके संग कोई एक बुरी चीज हो जाती है ना, तो सबसे पहली चीज क्या आती है? The thought that comes to your mind, all adults are dangerous. कि सारे के सारे इसने मेरे संग ऐसा करा, सारे ऐसे होते होंगे ना। जैसे महिलाएं कहते हैं ना, सारे आदमी एक से ही होते हैं, है कि नहीं? जैसे सारे पुरुष कहते हैं सारी औरतें एक सी होती हैं, तो ऐसे ही बच्चों के मन में भी जब इतना बड़ा आदमी ये मिसनोमर क्रिएट कर सकता है, मान सकता है, तो छोटा बच्चा नहीं मान सकता। सारे आदमी जिसने मेरे संग किया, क्योंकि वो एक बड़ा है, उस बिल्कुल सब बुरे हैं, इसलिए डोंट ट्रस्ट. They have difficulty in establishing relationship. They have difficulty in trusting people. It's not about occupation. Trusting with adults. अपने घर वालों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, बाहर भैया जो भी है उनको ट्रस्ट नहीं करते, स्कूल में टीचर्स को ट्रस्ट करना, इट्स नॉट एडवाइजेबल टू ट्रस्ट एडल्ट्स, क्योंकि ये लोग गलत काम करते हैं, इसलिए इन पे भरोसा करना ठीक नहीं है। इसलिए अपनी बात बताना भी ज़रूरी नहीं है, इनके संग कोई रिलेशनशिप भी बनाना ज़रूरी नहीं है। फिर जब वो बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो उनको अपनी एक पर्सनल लाइफ इस्टेब्लिश करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, ठीक है ना? एंड इफ यू आर एन एडल्ट यू कैन बिहेव एज यू वांट. अगर आप वयस्क हैं, आप बड़े हैं, मैं तो छोटा बच्चा हूं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, बड़ा है तो उसके पास सब अधिकार हैं, तो वो कैसे भी व्यवहार कर सकता है। तो जब मैं बड़ा बन जाऊंगा ना, तो साले मैं भी देख लूंगा, आंदा मेरा नंबर जब आएगा, दिस इनकलकेट द सेम मेमोरीज कि व्हेन दिस हैज हैपेंड टू मी एंड दिस स्टूपिड गाय हैज डन दिस, व्हेन आई विल बिकम कैपेबल आई विल आल्सो डू लाइक दिस. सो this is the harm, short term harm, a long term harm that trauma has given. And if this is not resolved, ये वो एक है बच्चे की जो पर्सनालिटी बन रही है, जो इमारत बन रही है ना, उसमें जो 2 खराब ईंटें लग गई हैं,
वो जिंदगी भर दीवार को टेढ़ी रखेंगी। हमारा काम है, हम उस ईंट को निकाल नहीं सकते, वो तो लग गई, वो ट्रॉमा तो हो गया, है कि नहीं। हमारा काम क्या है, हमारा काम एज ए डॉक्टर, एज ए साइकेट्रिस्ट, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सो दैट व्हाट वी कैन डू इज कि जितनी काट छाट ईंट के संग कर सकते हैं, और एक अच्छा सा प्लास्टर, ठीक है ना, ताकि वो उसी दीवार का एक हिस्सा बन जाए और उसके लिए प्रॉब्लम ना करे। सो रिजोल्यूशन ऑफ दैट ट्रॉमा, सो दैट हर बार क्या होगा, अगर वो ईंट को आप काट छाट करके अच्छे से प्लास्टर में दबाएंगे नहीं तो क्या होगा, कोई भी देखेगा सबसे पहले ध्यान किस जाएगा, ईंट तो बाहर निकल रही है, ये तो यहाँ से टेढ़ी है, ये तो वहां से मेढ़ी है, ये अच्छी नहीं लग रही है। हर बार वो ट्रॉमा रीलिव होगा। तो हमारा काम है तो वो ट्रॉमा रीलिव ना हो और बच्चे को अपनी गलती ना लगे कि इसमें मेरा कोई योगदान था। यूजुअली क्या होता है कि तूने कुछ करा होगा, वो सेंस जब आप पास करते हैं तो वो बहुत दिक्कत है। तो जो बच्चों के मन में भाव आते हैं वो ये बहुत सारी चीज कि व्यक्ति मतलबी हैं, जब वो जो मन चाहे कैसा कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी से, एंड दीज आर द पीपल हु यू शुड नॉट ट्रस्ट देम। So these are the things that should be addressed if we want a long-term recovery in kids. So these are the various defense mechanisms. I won't go into the details. ये सब चीजें हैं जो हम जब हम ट्रॉमा से गुजरते हैं उसके बाद हम करने लगते हैं कि what you become defined. मुझे नहीं सुननी घर में, you become irritable. जो कहा है वो तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। You become deviant कि ये कह रहे हैं घर वाले तो ये नहीं कर रहे हैं। आप चीजों को मैनिपुलेट करना सीखते हैं, जैसे मेरे संग मैनिपुलेशंस हुए, किसी ने मुझे उल्लू बनाया, यू लर्न दैट, इससे तो मैं भी सीख सकता हूँ। झूठ बोलना सीख जाते हैं, मुझे वो बात बतानी नहीं है क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, घर वालों ने, आपने शेयर करी, घर वालों ने कहा नहीं ये बतानी नहीं है, यू लर्न दैट दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। 5 ईयर किड्स, 6 ईयर किड्स, यू आर टेलिंग देम कि किसी को मत बताना, ये बहुत गलत बात है, यू आर लर्न टीचिंग हिम टू लाई। So these are the things, these are the virtues we incorporate into the children. And various kind of psychological disorders आप जब directly नहीं बताते हैं तो कहीं ना कहीं always this is the fact that you need help. You need help. And if you can't directly ask for help, you have various ways to ask for help. And that are various ailments in your body and mind. फिजिकल एलिमेंट डॉक्टर मधु ने बताया, बार बार पेट में दर्द हो रहे हैं, है कि नहीं, यहाँ परेशानी वहाँ परेशानी, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर से भाग जाएंगे, घर से चोरी करनी शुरू कर दी, एब्सेंटिज्म, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, बहुत अच्छा था पढ़ाई में, 2 महीने से बिल्कुल पढ़ाई में नहीं है, रोज सुबह उसके पेट में दर्द होता है, जब ऐसे स्कूल जाना होता है फिर बंद हो जाता है, स्कूल जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, या बहुत उदास रहने लगा है, चिड़चिड़ा होने लगा है। कई लोग नशे का इस्तेमाल करने लगते हैं बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग। अगर कोई व्यक्ति जान पहचान का है और उसने आपके संग कुछ गलत कृत्य किया है, वो रोज आपको दिखता है ना, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे आपके पड़ोस में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, योर अंकल जी इज डूइंग समथिंग बैड विद यू सम एंड ही इज कमिंग डेली फॉर अ पैग विद योर फादर, या चाय पीने के लिए रोज आते हैं, एंड ही इज कमिंग डेली एट 8 o'clock एंड यू कांट शेयर इट बिकॉज यू डोंट हैव दैट ट्रस्ट कि अंकल जी और पापा जी की दोस्ती तो बहुत अच्छी है, पापा जी मेरी बात तो मानेंगे नहीं, प्रूफ हमारे पास कोई है नहीं, तो पापा जी को क्यों बताया जाए, है कि नहीं। तो पापा जी को बताएंगे नहीं, लेकिन अंकल जी रोज आएंगे, तो कैसे काम चलाया जाए। जब अंकल जी आए तब भाग जाओ, कमरे में बंद हो जाओ, ठीक है नहीं, या जब अंकल जी आए तो उधमबाजी करनी शुरू कर दो, 2-4 तोड़-फोड़ करनी शुरू कर दो। Some kind of behavior which you want to keep the perpetuator away from you so that you are not reliving that trauma. That is evident into the child at every stage of life. We have to be vigilant enough to ask ourselves कि why this change is happening in our child. ठीक है ना, हमारा सवाल क्या होता है, हम सवाल, अगर हम कुछ ऐसा बुरा सोचते भी हैं तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं, तुम्हारे संग किसी ने कुछ उल्टा सीधा किया, एंड वी अंडरस्टैंड कि वी आर वेरी एम्पैथेटिक। व्हाट इज उल्टा सीधा, यू हैव टू एजुकेट दैट चाइल्ड व्हाट इज उल्टा सीधा। वो तो आपने कभी बताया नहीं उल्टा सीधा क्या होता है, ना बच्चे की उम्र है 4-5 साल में समझने के लिए। वो 3 years old child, 4 years old child अंडरस्टैंड्स जेनेटिक सेक्स, वो समझने लगता है कि हाँ मैं लड़की हूं या मैं लड़का हूं। सेक्स तो बहुत दूर की बात होती है,
तो 3 साल में तो ये उम्र अकल आती है। हाँ, 10-12 साल के बच्चे में ये अकल होती है कि आई एम मेल, आई हैव सर्टेन बॉडी पार्ट्स, आई हैव सर्टेन रोल्स, सर्टेन थिंग्स कैन बी डन टू मी, सर्टेन थिंग्स आई कैन डू टू पीपल. But we don't talk about all these things in our family. We never talk about it. We talk about all these things in forums. है ना? We don't go back and talk about these. So these are the things. So what बुरा, अच्छा, कुछ गलत सलत किया, उल्टा सीधा किया, that should not be the question. The question is, let's sit. What's going on in your life? है ना? MCQ पूछेंगे तो आंसर 4 में से एक ही मिलेगा, और हो सकता है वो 4 चॉइसेस आपके बच्चे में नहीं हो, है ना? आप सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि इसके ये 4 आंसर हो सकते हैं, वो मैंने पहले सोचा हुआ है, तो उसके 4 ही आंसर हैं. हो सकता है बच्चे के पास जो आंसर है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10वां आंसर है, लेकिन वो तो आपने दिया ही नहीं. किसी ने तुमको मारा, किसी ने तुमको पीटा, मैडम ने कुछ कहा, किसी ने कुछ उल्टा सीधा कहा, नहीं. और क्या है? क्योंकि वो आपने चॉइस ही नहीं दी. तो चॉइस क्या होनी चाहिए कि लेट्स सिट एंड टॉक. हाउ इज योर डे गोइंग? क्या चल रहा है आजकल? क्या हुआ? तुम्हारे स्कूल में कौन है? कौन बच्चे हैं तुम्हारे? क्या करते रहते हो तुम? और क्या चल रहा है? व्हेन यू आर टॉकिंग नॉर्मली ऑन दीज टॉपिक्स डेली विद द चाइल्ड, डेली, देन ही हैज दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि हाँ, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मुझे थोड़ा सा समझते हैं, ये दे कैन अंडरस्टैंड मी. वरना यूजली क्या होता है, हाँ आ गए, टिफिन निकालो, जूता रखो, होमवर्क कर लिया, बैठ जाओ जल्दी से. वो बैठ रहा है, देख रहा है वैसा, और माँ बाप कह रहे हैं वो तुमने जूते यहाँ फेंक दिए. तो जब आपकी सिर्फ लिमिटेड बात होगी तो कभी भी आंसर नहीं निकलेगा. सो ऑलवेज यू शुड ऑलवेज थ्रो अ लॉन्ग क्वेश्चन. 20 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए ना. फेंकने का इतना मिलता है कि कुछ भी लिखो. टॉपिक का थोड़ा सा आना चाहिए. पूरी राम कहानी पिक्चर की लिख दो, बीच में शोले की, गब्बर सिंह, और एंड में लिख दो XYZ. तो यू हैव लॉट ऑफ मटेरियल इन 20 मार्क्स क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव में गलत तो गलत, सही तो सही, जरूरी नहीं है ना. और 20 नंबर में लिखने के लिए मिलता है तो 20 में से कम 4-5 तो मिल ही जाएंगे, चाहे कितना ही खराब लिखा हो. तो प्रोबेबिलिटीज दैट यू गेट समथिंग आउट ऑफ अ लॉन्ग क्वेश्चन इज मोर एज कंपेयर टू अ MCQ. So we have that. So kids feel that they can be intimated, they are powerless, they have all varieties of conversion system. कुछ लोगों में आवाजें चली जाती हैं, कुछ लोगों की रोशनी दिखाई देनी बंद हो जाती है, temporary. They have all kind of psychiatric disorders, which I don't think so is not a proper forum to talk about all these things. So these are certain signs and symptoms which kids usually come up. I lost track of the case which I was talking about. After 20 minutes of talking with that boy, है ना, तब उसने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं गांव, वो मोहल्ले के, वो मुझे परेशान करते हैं. ठीक है, बच्चे परेशान करते हैं, कम बुद्धि का बालक है तो परेशान क्या करते हैं? चढ़ाते हैं तुमको क्या? तो अगर आप ये कहते हैं कि आप चढ़ाते हैं तुमको, पागल कहते हैं क्या, तो देयर यू एंड एवरीथिंग. That's why I want to emphasize how you portray your question, how you portray your concern, and how you portray your understanding about the subjects. Your next question should be, अच्छा बताओ क्यों, क्या कहते हैं तुमको, क्या करते हैं, क्या चढ़ाते हैं तुमको. Then he came up with all this thing. गाँव मोहल्ले के लड़के हैं, मुझसे 4-5 साल बड़े हैं, मुझे मारते हैं पीछे से, ऐसे करके मारते हैं, वो कहते हैं इधर आवे पागल, इधर आवे पागल, और फिर मुझको ले जाते हैं कोने में. एंड ठीक, नाउ ही डजंट हैज वर्ड टू एक्सप्लेन व्हाट वाज डन टू हिम. नाउ वी हैव टू डिप्लॉय दोस टॉयज टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द थिंग्स दैट usually can happen with in these circumstances. And then he picked up one of the things, yes, they do this act with me. So it took us 3 sessions and a 20-minute in that last session to come up with that trauma which he has been living since last so many months. And when we asked him कि should we share it with your parent, कि नहीं, उनको मत बताना, उनको नहीं बताएंगे. क्यों भाई, क्यों नहीं बताना, बताओ. अरे नहीं, वो मैं थोड़ी देर तो बाहर खेलने जाता हूँ, वो भी बंद कर देंगे. तो his concerns are quite different. Our concerns are this act. His concern कि मुझे तो बाहर खेलने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, वो भी नहीं मिलेंगे, आधा घंटा मिलता है या 1 घंटा मिलता है, और आपने बता दिया कि ऐसा कुछ हुआ है तो बाहर जाना भी बंद होगा. So until and unless we go into all those details, very difficult. I have worked, I won't say it was a privilege for me to working, but I got this opportunity to work with one of the DIGs of this city.
and we worked with survivors of sexual abuse. For 2 years we had worked. It's really pathetic when you face them. Their priorities are totally different. Psychiatry comes at bottom line. Concerns are primary, but the concerns मतलब concerns बहुत सारी हैं, लेकिन psychiatry need सबसे नीचे आती है. पहली need क्या होती है? And madam was she was a good lady, very good lady. She used to understand. अब वो क्या करती थी कि डॉक्टर साहब आप बात करिए, आपसे बेहतर बात करेंगे. हम बात करने बैठते थे, हमारे पास 2 सेशंस के बाद हमने कह दिया मैडम पहले आप बात कर लीजिए, आपकी ख़त्म हो जाए तब हम बात करेंगे. तो बोली क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने कि इनकी प्रॉब्लम्स हमारे लेवल की है ही नहीं. इनकी क्या है? मैडम 6 साल हो गए केस रजिस्टर नहीं हुआ है. मैडम 2 महीने हो गए केस की हियरिंग नहीं हो रही है. मैडम हमारे को ये करा दो. ऑल लीगल कंसर्न. दे व्हेन यू हैव समथिंग इन लाइफ यू वांट अ रिवेंज, कि किसी तरह अपने मन की भड़ास निकले और आपको कहीं ना कहीं लगे कि हाँ जो मेरे संग हुआ उसका कुछ खामियाजा सामने वाले को मिलना चाहिए. और जब वो नहीं मिलता है कि मैडम उसकी तो बेल हो गई, वो तो घूम रहा है, एंड दैट डीआईजी इज हेल्पलेस. व्हाट कैन आई डू? सो देयर कंसर्न्स. Then we talked about ki, okay fine, this is done, this is one domain of life, legal aspect, we are moving with legal aspects. What else you want in life? They had very simple needs. One girl shared with me ki I want to do a beauty parlor course. 14-16-year-old girl, और मुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है क्योंकि my mother is an illiterate, my father is a rickshaw wala, and I have seen if you don't have money you can't survive. So I need to earn and I'm not that educated. तो आप मुझे एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दीजिए. A simple thing that hardly cost, that course cost some 3,000-5,000 rupees. It was not a big deal. We say okay fine, you do that course. कहाँ करना चाहती? You tell us, we will get you enrolled. She came up with it will cost 5,000 rupees. We gave her 5,000 rupees. She did the course. 6 months down the lane she came that I have done a course, I am going for bridal makeups and I am earning 2,000 rupees. So these are small things. So if you can't perpetuate your concerns कि हम आपके समस्या को समझते हैं, तब तक कोई अपनी समस्या नहीं बताता है कि नहीं. समस्या बताना उतना आसान तो नहीं है. समस्या बताने के लिए ये डिक्लेयर करना पड़ता है पहले कि मैं नाकाबिल हूं अपनी समस्या से डील करने के लिए. मुझे मदद की जरूरत है. मदद किसी को नहीं चाहिए एक्सेप्ट इकोनॉमिकल. पैसे दे रहे हो तो बात अलग है कि नहीं. तो इट्स डिफिकल्ट टू आस्क फॉर हेल्प. सो वी शुड बी द वन. जब हम इतने पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, तो इतना तो काम बनता है कि नहीं, टू एक्सटेंड अवर हेल्प एंड टू टेल देम इफ यू नीड एनी टाइम I am there, we are there. And I think that is the purpose of this seminar. If आप लोगों में से कुछ लोग आते हैं कि okay fine, I think this is a topic, this is a thing which really needs my help, my activity or any sort of thing. I won't talk about core psychiatry, what is anxiety, depression, वो सब क्या होने वाला है, वो सब जब आएगा तब हम देख लेंगे. Our job is to understand the plight, the need. They need very simple things. One girl needed कि मुझे, I still remember because I remember, मुझे याद है अच्छी तरीके से, there were 80 girls. We did lot of psychological testing on all those girls कि what is their understanding on role plays and बहुत सारी sessions चली, workup and those things. Their needs are simple. Their needs are very basic. They just want you to understand them, not blame them and help them. आपके लिए किसी भी व्यथा को, किसी भी परेशानी को भूलना फितरत है. ऊपर वाले ने आपका दिमाग ऐसा बनाया है. समय भले ही ज्यादा लग सकता है या कम लग सकता है. 2 साल लगे भूलने में, 4 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन भूल नहीं सकते आप. वो सिर्फ अंदर दफन हो जाएगी. ठीक है ना. दफन करने के लिए ऊपर कुछ लादने की जरूरत है. ऊपर लादने के लिए हमें अच्छी चीजें चाहिए. अगर आप अच्छी चीजें दे पाएंगे, जल्दी दफन हो जाएगी. भूल नहीं सकते. हम कहते हैं कि तो भूल जाओ. इट्स नॉट पॉसिबल. ना अच्छा भूल सकते हैं हम, ना बुरा भूल सकते हैं. वो रीराइटेबल है ना, पूरी इरेज नहीं कर सकते. ऊपर वाले ने ऐसी बनाई है मेमोरी आपकी, तो आप भूलते नहीं है. तो हमारा काम क्या है, ये नहीं कहें कि भूल जाओ, अरे चल कोई नहीं. हम दोस्तों से कहते हैं ना, अरे यार उसने मेरे संग ऐसा कर, अरे भूल जा, छोड़ यार, आगे बढ़. भूल नहीं सकते कि ठीक है, अब हम इसके बारे में कह सकते, आगे बढ़ सकते हैं.
Let's see what we can do about it. It's not about forgetting it, letting it go. भूल जाओ, अब हम क्या कर सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो, हम गरीब हैं, तुम अमीर हो, पैसे नहीं है, ये नहीं है. It's not about. They don't want. This is also one of the domain. What they need is that you understand कि I can understand what you are going through, despite my differences in education and economics and all those things, but I still understand and I'm there. You decide. When you give that authority, that you decide what you want to pursue, and I'm standing there for you. I'm not doing anything for you, but I'm standing there for you. That gives them the privilege and the proud to pursue their life in a better way, in a justified and I don't know the proper word. So these are the one of the things. It takes a lot of time. You need to have multiple sessions, dolls, charting, and usually 3 sessions are gone just for making a rapport and establishing the instill that courage into the child. And why usually only 20 to 30% of the cases are brought directly कि हमारे संग ऐसा हो गया है. उससे ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्टेड ही नहीं है और जिसमें माइनर असॉल्ट्स होते हैं, जो कि अलग कैटेगरी है आपकी. इसमें हम वो कैटेगरी जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं चल रही है और सालों तक चलती रहती है, जब तक कि बच्चे को ये समझ में आए कि कुछ गलत था या सही था, या इसके लिए मैं कुछ कर भी सकता हूँ कि नहीं भी कर सकता हूँ. सो वी शुड बी द पीपल हु कैन एक्सटेंड आवर हेल्प. Thank you, Dr. Richa. Thank you everyone for patience listening. I hope I didn't have embarked on your lunch. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for very informative and interesting and soothing lecture. A huge round of applause for sir. Now I would like to call upon Dr. Alka Gupta, Department of Pharmacology, to kindly felicitate Professor Dr. Vishal Sinha, sir. A huge round of applause. Now, I would like to invite Senior Advocate Pramila Sharma ma'am to kindly say a few words. Please raise your hands together for Pramila Sharma ma'am.